Good morning, all. In today's session of salary, we will complete with the perquisites and the section 16 part, which will complete your salary chapter wholly. So, in today's session, we will study the following perquisites, which is the gas, electricity, water, free servant, education facility, car facility, which is most important for exam purpose, entertainment allowance, which is section 16, standard deduction, tax on employment or professional tax, which will complete your chapter wholly. So let's get start with the last session of salary. And first perquisite of today is the gas, electricity and water. So in this case, what will be the circumstances and what will be the value of benefit? If payment is made to the agency supplying gas, electricity etc. अगर एम्प्लॉयर पेमेंट करे किसी एजेंसी को, तो उस केस में जितना अमाउंट पेड हो रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है उस एजेंसी को, उतना अमाउंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट होगा, वैल्यू ऑफ परक्विसिट होगा, वो वैल्यू आपकी टैक्सेबल होगी, प्रोवाइडेड where the employee is paying any amount in respect of such services, the amount so paid shall be deducted from value so arrived. इस वैल्यू में से माइनस हो जाएगा अगर कोई एम्प्लॉई उस रिस्पेक्ट में कोई सर्विस दे रहा है. ठीक है. सेकेंड सर्कमस्टांस है, इफ सप्लाई इज मेड फ्रॉम रिसोर्सेज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. अगर सप्लाई हो रही है कहाँ से? अगर कोई रिसोर्सेज ओन्ड है एम्प्लॉयर की तरफ से, अगर ओन्ड है तो ऑफकोर्स manufacturing cost per unit incurred by the employer will be the value of benefit, and any amount has been taken from an employee for such service, and the amount so paid shall be deducted from the value so arrived at. Okay. Next is the free servant. It will be fully taxable. If the free servant perquisite is provided by the employer, then it will be fully taxable. Next is the education facility. एजुकेशन फैसिलिटी में आपकी तीन सिचुएशंस आएंगी. फर्स्ट इज द स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन. अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड है एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन को, इट विल बी होली एग्जाम्ड. अगर स्कूल फीस ऑफ एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन डायरेक्टली पेड एंड रीइम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, डायरेक्टली पेड एंड रीइम्बर्स्ड, देन इट विल बी फुली टैक्सेबल. और अगर एजुकेशन एम्प्लॉयज़ के स्कूल में हो रहा है तो 1000 rupees per child is exempt for any number of children, but they should be the employees' children only. There is no limit of any children like children allowance. So in this case, the 1000 per child is exempt for any number of children, but there should be an employees' children only. Okay, this is the education facility which is a perquisite which is provided by the employer to the employee. Next is the car facility. Now इसमें आपके क्या होता है कि तीन पर्पस आते हैं. Either this facility is given for official purpose, either for personal purpose, and third is most important, which is important for the examination purpose, is the both purpose cases, means for official and personal purpose. Okay, तो फर्स्ट मैं ऑफिशियल पर्पस एंड पर्सनल पर्पस आपके स्टडी मैथ से कवर कर रही हूँ. देन बोथ पर्पस के लिए ऑलरेडी उसमें आपके मैथ में गिवन है, बट इसे मैं थोड़ा और ब्रीफ करके यहाँ पे समझाऊंगी. ठीक है, तो पहले हम चलते हैं ऑफिशियल पर्पस में. पेज नंबर 95 ऑफ आईसी में है स्टडी मैथ. हियर इट इज़. ठीक है, अब मैंने बोला मैं पहले अभी आपको बोथ पर्पस नहीं कराऊंगी, तो इसमें बोथ पर्पस बिल्कुल मत देखिएगा. मैं सिर्फ इसमें दो ही पर्पस अभी डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ द अगर वो होली ऑफिशियल पर्पस के लिए दी गई है और होली पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है. ठीक है, अब इसमें जो आपको वर्ड्स दिख रहे होंगे M&D. हेयर M स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट and D stand for depreciation at the rate 10% of actual cost of the car will become the perquisite. Okay, तो इसमें D और M का जहाँ भी रेफरेंस है,
M stands for the maintenance cost and D refers for the depreciation at the rate 10% of actual cost of the car. ठीक है, फर्स्ट है कि कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड कार इज़ मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर. कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड कार इज़ मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर. दोनों चीज़ एम्प्लॉयर की तरफ से हैं और वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं. तो एम्प्लॉय के लिए तो कोई परक्विसिट है ही नहीं और इसलिए उसमें टैक्सेबल वैल्यू परक्विसिट कुछ नहीं होगा. इट इज़ नॉट अ परक्विसिट. ठीक है. सेकेंड केस है पर्सनल पर्पस के लिए हो रही है. कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार इज़ मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर बट इट इज़ यूज्ड बाय एम्प्लॉय फॉर हिज होली पर्सनल पर्पस. अब होली पर्सनल पर्पस है तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी पेट्रोल वगैरह कुछ भी लग रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस जो कॉस्ट ऑफ द कार का डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, depreciation at the rate 10% of actual cost of the car and maintenance cost will be the taxable value of perquisite. ठीक है. अभी बोथ पर्पस काउंट मत कीजिए, उसको मैं ब्रीफ करके डिस्कस करूँगी. नेक्स्ट वाला जो आपका एरिया है वो है कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड कार इज़ मेंटेन बाय एम्प्लॉय. देखिए, कार एम्प्लॉयर ओन कर रहा है पर मेंटेन एम्प्लॉय कर रहा है. ठीक है, मेंटेन एम्प्लॉय कर रहा है तो वो आपका डेप्रीसिएशन वाला पार्ट तो रह ही जाएगा क्योंकि उसमें कहा था कि मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसमें तो दोनों केस उसमें थी. बट यहाँ मेंटेन तो एम्प्लॉय कर रहा है तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो टैक्सेबल होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद ही एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है. तो उस केस में आपका ऑफिशियल पर्पस में तो वो नॉट ही परक्विसिट हो जाएगा. ठीक है, ऑफिशियल पर्पस में तो परक्विसिट है ही नहीं. ठीक है, क्योंकि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, कार इज़ मेंटेन बाय एम्प्लॉय और ऑफिशियल पर्पस तो कुछ है ही नहीं. हम बोल रहे हैं अब ये पर्सनल पर्पस के लिए. ठीक है. फर्स्ट वाला जो आपका केस था उसमें था कि ऑफिशियल पर्पस है तो नॉट अ परक्विसिट बिकॉज बोथ हिज कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार इज़ मेंटेन बाय एम्प्लॉयर. एंड अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए तो परक्विसिट है ही नहीं. पर्सनल पर्पस के लिए तो मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार. अगर कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार इज़ मेंटेन बाय एम्प्लॉय तो ऑफिशियल पर्पस में वो परक्विसिट नहीं है पर पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है तो देन डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ द कार विल बी द परक्विसिट वैल्यू, टैक्सेबल परक्विसिट वैल्यू. थर्ड केस है कि कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉय, कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर. अब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है तो ऑफकोर्स रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वाला जो पार्ट है वो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगी वो उसके लिए परक्विसिट हो जाएगी, है ना. क्योंकि कार मेंटेन क्या कर रहा है, ओन तो वही कर रहा है बट मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है. मेंटेन कौन कर रहा है, वो एम्प्लॉयर कर रहा है. तो उस केस में आपकी अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हुई तो वो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू. ठीक है. दिस कवर्स विद द ऑफिशियल पर्पस, होली ऑफिशियल पर्पस and if it is used for wholly personal purpose. And there are 3 cases also in the case of both purpose also. तो इसको वो थोड़ा सा बड़ा है एंड वो थोड़ा समझने वाला एरिया तो मैंने उसे एक अलग पॉइंट्स में एक्सप्लेन करा. इससे समझ उतना नहीं आएगा, मैंने उसको अलग अलग पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है. दिस इज़ बोथ पर्पस. दिस इज़ यूजुअली कम्स इन योर एग्ज़ाम्स. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर ये आया तो ये आज से यूजुअली आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता. बट अगर कार फैसिलिटी में से कुछ चीज़ आएगी जो थोड़ी सी ट्रिकी वन है वो आपका बोथ पर्पस यूज़ है कार फैसिलिटी का परक्विसिट के केस में. तो हम इसको पढ़ते हैं. पहले है कि कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉय, कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉय. सेकेंड केस है कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. ठीक है, कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड second is the car is owned by employer. Running and maintenance charges paid by employee. Although the first case में कार employee owned कर रहा है but maintenance charges employee पे कर रहा है. कार ओन्ड कर रहा है एम्प्लॉई और रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज जो है आपका एम्प्लॉई पे कर रहा है. ठीक है, इसमें तो अब एम्प्लॉई दोनों जगह एम्प्लॉई हो गया. अब कार भी उसी की है और
भाई मेंटेन भी वही कर रहा है, तो कोई बेनिफिट कहाँ से हुआ? तो ये नॉट टैक्सेबल इन दिस केस. अगर कार इज ओन्ड बाय हाँ, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई but the running and maintenance charges is paid by the employer, then in that case the taxable amount will be the running and maintenance charges by the employer. ठीक है, आपके हिसाब से रनिंग एंड मेंटेनेंस होना चाहिए कि भैया रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर कर रहा है, बट लेकिन अब इसमें देखिए एक चीज़ और है कि वो कार भैया दोनों चीज़ के लिए यूज़ हो रही है ना. अब वो सिर्फ पर्सनल पर्पज़ के लिए तो यूज़ नहीं हो रही है, वो ऑफिशियल पर्पज़ और पर्सनल पर्पज़ दोनों के लिए यूज़ हो रही है, तो टैक्सेबल तो पूरा रनिंग मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो उस केस में कितना डिडक्शन मिल जाएगा? 1800 पर मंथ मिल जाएगा अगर 1600 सीसी की कार है, और अगर 1600 सीसी से ज़्यादा है तो 2400 पर मंथ. द रिमेनिंग विल बी योर टैक्सेबल अमाउंट. अब नेक्स्ट केस आता है, ये आपका केस था कि कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉय. नेक्स्ट केस है कार इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय. अब कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय. अब अमाउंट थोड़ा कम हो गया, सिर्फ मेंटेनेंस पोस्ट एम्प्लॉय पे कर रहा है, कार उसने ओन्ड कर रखी है, तो इन दैट केस टैक्सेबल अमाउंट छोटा होगा, देते 600 पर मंथ अप टू 1600 सीसी कार के लिए, और 900 पर मंथ अगर 1600 सीसी से ऊपर है. ठीक है, और अगर इसमें कोई ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है तो 900 पर मंथ उसका भी होगा. ओके. और नेक्स्ट आता है कि कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर बट रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर ही मेंटेनेंस कर रहा है, कार भी ओन्ड वही कर रहा है, तो बेनिफिट ज़्यादा हो गया. तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट आपका 1800 पर मंथ हो जाएगा अप टू 1600 सीसी के लिए, और 2400 पर मंथ हो जाएगा 1600 सीसी के लिए ज़्यादा. अगर ड्राइवर भी अगर बेनिफिट दिया जा रहा है साथ में तो ड्राइवर का 900 पर मंथ हो जाएगा. ओके, दिस इज़ योर कार फैसिलिटी परक्यूसिट्स, जिसमें हमने 3 केसेस पढ़े. फर्स्ट इज़ द ऑफिशियल पर्पस विच इज़ यूज फॉर होली ऑफिशियल पर्पस, सेकेंड विच इज़ यूज फॉर होली पर्सनल पर्पस, और थर्ड बोथ पर्पस. इसमें थोड़ा सा बस आपको लॉजिक लगा के इसको स्टडी करना है. लॉजिकली सोचिएगा कि किस चीज़ में क्या लगना चाहिए. लॉजिकली मैंने इसलिए इसको जो बोथ वाला है मैं सिर्फ बहुत लॉजिकली बताया कि कहाँ लगना चाहिए और कहाँ नहीं लगना चाहिए. तो लॉजिकली आप इसको अगर रिकॉल करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न द सेम. ठीक है, this completes with your perquisites part, and the only section which get remain is the section 16, which covers your entertainment allowance, standard deduction, tax on employment और professional tax. ठीक है, फर्स्ट आते हैं हम entertainment allowance, it is an initially included in taxable allowances as fully taxable. ठीक है, ये it is initially included in the taxable allowances as fully taxable, और उसके बाद इसका डिडक्शन मिलता है. बट ऑल्दो हमें कुछ पॉइंट याद रखना होता है कि ये जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगा. ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा. ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा. और डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होगा? बीइंग मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज द एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, देन ₹5,000, then 20% of basic salary. Minimum of the following: actual entertainment allowance ₹5,000 and 20% of basic salary. इसमें कोई सैलरी का डेफिनेशन है. It together says that it is 20% of basic salary. What will be the basic salary? Then you just straightforward take a 20% of that and compare it with ₹5,000 and actual entertainment allowance. The minimum should be the deduction for entertainment allowance, but only in case of government employee, not in case of non-government employee. Deduction allowed shall be irrespective of actual expenditure incurred. ठीक है, this completes with your entertainment allowance. Next is the standard deduction. Although earlier it was a 40,000 deduction which is provided as standard deduction under section 16, but now it got amended and it is now ₹50,000 which is provided as standard deduction while calculating the salary. ठीक है,
तो इट इज़ द लोअर ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ₹50,000 और अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। इसमें मेरा कुछ बताने वाला नहीं है। आप जब सैलरी का क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन देना होता है विच इज़ 50,000. अर्लियर इट वॉज 40,000 बट नाउ it is 50,000. Next is the tax on employment or professional tax. Then this is the professional tax which is although provided in Maharashtra state itself. In some states the professional tax is levied and Maharashtra is one of the state. The tax on employment, professional trade, etc. is levied by the state under Article 276 of the Constitution, which will be allowed as deduction on cash basis. It is allowed on deduction on cash basis, whether paid by employee or by employer on the behalf of employee from gross taxable salary. बट अब ये ध्यान रखना है कि वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है. एम्प्लॉई पे कर रहा है तो ऑलरेडी वो पे कर चुका ना, तो उसका सैलरी में ऐड करने वाला बात तो है नहीं, तो सीधा डिडक्शन होगा. और अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो इट शुड फर्स्ट बी एडेड इनटू द सैलरी, देन डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम दैट. तो इसमें नोट मैंने इसलिए लिखा है, इफ़ द एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय पेज प्रोफेशनल टैक्स देन फर्स्ट इट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन as a taxable perquisite and further it is allowed as a reduction under section 16. Okay, so this completes with your tax on employment or professional tax, and this completes your whole chapter of salary. I hope you like all the parts of it. This will be the last part of the salary, and I've already uploaded the whole revision of chapter salary which is applicable as per the Finance Act 2020 for further examinations. So अगर आपको मेरा ये सब मेहनत अच्छा लगा हो, अंडरस्टूड हुआ हो, आपको कुछ भी हेल्प किया हो, प्लीज़ काइंडली गिव योर फीडबैक्स. एंड यस अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियोस नहीं देखी हैं इससे पहले की तो प्लीज़ रिव्यू कीजिए. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द अदर पार्ट्स ऑफ सैलरी. इसके अलावा जिसमें आपको सारा पार्ट कवर है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, पूरा सैलरी चैप्टर मैंने पूरा रिवीजन पूरा मैंने अपलोड कर दिया है. आप पूरा वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. एंड दिस विल बी योर लास्ट पार्ट. सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो एंड आपको ये बेनिफिट दिया हो. अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट दिया है तो काइंडली गिव फीडबैक एंड स्टे ट्यून्ड एट माई चैनल फॉर फर्दर videos and for further learning in taxation. Okay, so thank you.